Thank you for staying with us. We are back from the break. اور ہمارے ساتھ ہیں کیسر عباس صاحب. Thank you for being with us. اور یہ بزنس سائیکالوجسٹ ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. اور میں آپ کا وہ جیو پہ بھی دیکھ رہا ہوں, بہت اچھا ہے پرومو جو آپ کا آ رہا ہے. بٹ اس سے پہلے ایک پیکج دیکھتے ہیں جو آپ کے لیے ہم نے تیار کیا. لیٹس گو اینڈ واچ دیٹ. گاؤں چھوڑ کے لاہور تو آ گیا, لیکن رہنے کا مستقل ٹھکانہ نہیں تھا. بس ایک تڑپ تھی, کچھ کر دکھانا ہے. پیسے نہیں تھے, پڑھائی کرنی تھی. ایک اخبار میں اپلائی کیا. میرے پاس 2 گولڈ میڈل تھے, لیکن نوکری ملی تو اسی اخبار کی کینٹین پہ. سوچا ہمت نہیں ہاروں گا. ہمت تو اس وقت بھی نہیں ہاری تھی جب ایک معمولی اسکول میں پڑھتا تھا اور خواب دیکھے تھے کسی اچھے اسکول میں پڑھنے. اپنے مقصد کو پانے کے لیے وال چاکنگ بھی کی, فیکٹریوں میں مزدوری بھی کی. مزدور کا بیٹا ہوں, میں کیوں جھجکتا. اور ہاں, ہمت اس وقت بھی نہ ہاری تھی جب نوکری کے لیے انٹرویو میں کبھی دوستوں کے کپڑے اور کبھی بہن کے جوتے پہن کے جاتا تھا. میں نے کچھ کر دکھانا چاہتا تھا, پڑھنا چاہتا تھا. ایم ایس سی کے بعد 1800 کی نوکری ملی اور ساتھ میں تانے کہ یہ ریڈی لگائے گا, بھیک مانگے گا. ٹھیک ہی کہتے تھے لوگ, ریڈی ہی تو لگائی ہے میں نے, خوابوں کی ریڈی. میں کیسر عباس ہوں, ایک انتہائی کامیاب مینجمنٹ ٹریڈنگ اینڈ کنسلٹنگ کمپنی کا مالک. میں لوگوں کو خواب دیکھنے اور انہیں پورا کرنے کا ہنر سکھاتا ہوں. جی, آپ نے ابھی پیکیج دیکھا. تھینک یو فار بینگ ود اس. اور آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی آپ نے بہت کام کیا ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے, اور وہ ایک جا کے آپ ان کے جو مینجمنٹ ہے اس کو لفٹ کرتے ہیں, اس کو لیکچرز دیتے ہیں. عام آدمی کے لیے آپ نے کچھ, کیونکہ دیکھیں میں جس جگہ سے آیا ہوں, میں فلم میرا ایک مین کور ہے, تو مجھے ہمیشہ اس فلم کو جو ڈی این اے ہے میرا, اس کو مجھے ساتھ ریپیئر کرنا ہے, اس کو ایک لارج اسکیل پہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہیو یو پرووائڈیڈ اینی ادر کوئی ایسا کوئی عام آدمی کے لیے کوئی جو اسٹرکچر. میں نے بھی آپ کا پرومو دیکھا, اس پہ مجھے میرے دل کو ہاتھ بھی پڑا, میری آنکھیں بھی نم ہوئیں, اور مجھے آپ کے حوصلے اور آپ کی جو آپ نے ہمت نہیں ہاری, اس پہ بہت میں فخر کرتا ہوں کہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں جو ایسے موقعوں پہ ہمت نہیں ہارتے. اور کیا عام آدمی کے لیے کچھ آپ نے کیا اس میں؟ ایگزیکٹلی, آئی تھنک میں اتنا ایکسائٹیڈ ہوں آپ کے اس شو کے بارے میں, اور I was so enthusiastic. اس کی ریزن یہ جو سامنے جیو شان سے لکھا, یہ میرے دل کے اندر ہے, یہ میری زندگی کا پرپس ہے. تھینک یو, بڑی اچھی بات آپ نے کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شان سے جینا بہت آسان ہے. ٹھیک ہے, شان سے جینے کا الٹ کیا ہوگا, پرہیپس شرمندگی سے جینا. تو میں خود چونکہ بہت عرصہ شرمندگی سے جیتا رہا, تو مجھے احساس ہوا کہ شرمندگی سے جینا زیادہ مشکل ہے. اس کی نسبت ذرا سی کوشش کر کے آپ شان سے جینا سیکھ سکتے ہیں. سو میں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے جو میں نے کتاب لکھی اس کا نام ہے شاباش تم کر سکتے ہو. شاباش تم کر سکتے ہو, جو کہ پبلک کے لیے. اینڈ آئی براٹ دی کاپی. اچھا, ماشاءاللہ, ویری نائس. شاباش تم کر سکتے ہو بھائی کیسر عباس. اور یہ انہوں نے عام عوام جو پڑھ سکتی ہے اس کے لیے لکھا. بیکاز جو دنیا بھر میں موٹیویشنل اسپیکرز انگریزی میں کتابیں لکھتے ہیں اس کی کوئی کمی نہیں ہے, اس سے 1000 گنا بہتر کتابیں موجود ہوں گی. لیکن پاکستان میں وہ لوگ, جب مجھے موٹیویشن چاہیے تھی, میرے پاس کوئی ایک بھی کتاب موجود نہیں تھی جو مجھے انسپائر کر سکتی, جو مجھے موٹیویٹ کر سکتی. دوسری چیز جو میری پوری زندگی ہے, اگر میری پوری زندگی میں ذرا سی بھی کوئی تبدیلی آئی, کہ میں کامیابی کے زینے کی طرف تھوڑا سا بڑھا ہوں, اس کی وجہ یہ کہ میرا فوکس کبھی بھی اپنی ذات پہ نہیں رہا. مائی انٹائر فوکس ہیز بین آن گیونگ. سو پہلے دن سے اس کتاب کے تمام پیسے غریب بچوں کے ایجوکیشن پہ خرچ ہو رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے یہ. رائٹ فرام دا بگننگ. اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ سب ان کو تحسین پیش کریں, بیکاز عام آدمی کے لیے جو آپ کر رہے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کی جو کتاب کے پیسے آتے ہیں وہ آپ اس پیسوں سے ان کو, یہ کوئی فنڈ ہے یا کوئی این جی او ہے یا آپ خود چلا رہے ہیں؟ نہیں, آئی ڈونٹ بلیو ان این جی اوز. ہماری کمپنی ہے پاسبلٹیز وچ از مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کنسلٹنگ کمپنی. تو ہم نے یہ سوچا کہ میں جس اسکول میں نہیں پڑھ سکا, اس پرومو کے اندر بھی دکھایا گیا کہ میں نیلے کلر کی یونیفارم پہن کے جاتا تھا,
लेकिन मेरे अंदर ख्वाब था, एक तड़प थी कि मैंने भी वो स्कूल जो है सामने, जिम मॉडर्न स्कूल होता था वो अब नहीं है, उसमें मैंने पढ़ना है और उसके बच्चों की यूनिफॉर्म मैंने भी पहननी है। तो उस वक्त तो मैं नहीं पहन सका, बट मैंने ये डिसीजन किया कि एक ख्वाब था कि मेरी वजह से कम एक बच्चा वहाँ तो उसी स्कूल में जरूर पढ़ेगा। और आज एक बच्चा नहीं, आज हमने पॉसिबिलिटीज फाउंडेशन क्रिएट की है जिसके प्लेटफॉर्म पे हंड्रेड्स के हिसाब से बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वेरी नाइस। So that is my tiny contribution. तो इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपका माजी में थोड़ा लेके जाऊंगा आपको, हालांकि मैं तो हमेशा माजी में जाता हूँ। आपने पहले मुझे दुखी कर दिया प्रोमो दिखा के। और यकीन करें जब वो पाँव का शॉट आया था तो मैं जब पहली दफ़ा प्रोमो देखा था तो मेरी आंखें नम हो गई थी उस बात पे, बिकॉज हमारा रिश्ता ऐसा है कि तरक्की जो है वो उसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो जो रिश्ते हैं हमारे साथ, उनकी जो छोटी छोटी सपोर्ट हमें होती है वो एक इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू कैन इमेजिन। बिकॉज जैसे मैं स्मोकिंग के वाले से बात हो रही तो मैं माय डॉटर, बड़ी बेटी जो मेरी बहिश्त है, वो हमेशा आते जाते, बिकॉज घर में मुझे नो स्मोकिंग बैन है हमारा आई कैन नॉट स्मोक इनसाइड द हाउस। तो हम बच्चे होते हैं तो अदरवाइज यू कैन, या बिकॉज पिछले 10-15 साल से हाई स्कूल के टाइम से मैं बता रहा था पीयर प्रेशर और लुकिंग कूल, और उस तरफ से आते आते हमें सिगरेट लग गए, लगते लगते आगे इस पॉइंट पे पहुंच गए कि अब हम उनको लग गए। बेसिकली कोशिश तो मेरी यही है कि उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन बच्चों की इन्होंने जो अवेयरनेस पे प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। स्कूल्स में जो अवेयरनेस कर रहे हैं उससे वो मेरी बेटी आती है घर पे भेजते और मुझे आते जाते उससे विस्ना करती हैं। तो फिर हमने एक डील की है, क्योंकि उसकी चॉकलेट बंद है और मेरे सिगरेट घर में, तो मैं कभी कभी उसको चॉकलेट दे देता हूँ और मैं किसी कोने में जाकर सिगरेट। बट द थिंग इज कि ये बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं, और इन सबको आप के ख्याल में कोई ऐसी मोटिवेशनल स्पीच हो सकती है या कोई डायलॉग हो सकता है जिसके ऊपर जिस तरह ये प्लेटफॉर्म है इनका, बिकॉज आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो जो अभी हमने अफरीदी साहब का देखा था वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनका बहुत शॉर्ट उसके ऊपर 1-2 स्टेटिस्टिक्स थी उन्होंने करके, वो शायद जल्दी में थे। तो आप कोई ऐसे इनके साथ सेमिनार जरूर रखिए जिसके ऊपर मोटिवेशनल स्पीकिंग, ऐसा है कुछ है कि आप बोल सकते हैं कि लोग सिगरेट छोड़ दें, और बल्कि ऐसी कोई खास है ताकि शान भी छोड़ दें जल्दी। राइट, और मदिया शुरू कर दें, कोई ऐसा है? आपने थोड़ा मुझे मुश्किल में डाल दिया, बिकॉज अगर मुझे पता नहीं होता कि आप भी सिगरेट पीते तो मैं बहुत कुछ कह रहा था। अच्छा, मुझे लगता है कि वो और यकीन करें मुझे, अगर आप नहीं पीते तो मुझे पता है मैंने क्या क्या कहना मुझे लगता है कि मैं खुद सिगरेट नहीं पीता, और इस बात पे बड़ी अच्छी बात है। और जब मैं हॉस्टल में था तो वहाँ हर कोई सिगरेट पीता, हर बंदा सिगरेट पीता। कैसे आपने बचाया अपने आप को उन तमाम सिगरेट वाले हाथों से? मेरा ख्याल है कि आपके अंदर एक खला होता है, आपके अंदर कुछ कर दिखाने की तड़प होती है जिसको आप रीडायरेक्ट नहीं कर पाते, फिर आप सुकून ढूंढते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों में, ड्रग्स के अंदर फॉर इंस्टेंस। तो मेरा ख्याल है कि उस खला को पुर करना चाहिए बाय डूइंग समथिंग ग्रेट फॉर द सोसाइटी। फॉर इंस्टेंस मैंने उस सारी एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड काउंसलिंग अदर्स। मैं आज भी जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूं तो ऑलमोस्ट जैसी ब्रेक होती है ना, तो जितने स्मोकर्स होते हैं सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं भी जाता हूँ, धुएं के अंबार लगे होते हैं, मैं भी जाके कहता हूँ सिगरेट, तो 50 पैकेट्स आ गए, सर ये पी रहे। तो मैं सभी से सिगरेट ले लेता हूँ और मैं लगाता नहीं, मैं वैसे पकड़ के बैठा रहता हूँ, और फिर उनसे पूछता हूँ कि आपको अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं है? तो वो कहते हैं अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत है। तो मैं कहता हूँ अगर आपको अपने बच्चों से मोहब्बत हो तो फिर आप ये सिगरेट नहीं पिए। तो कहते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर इंस्टेंस मेरे मामू है, वो बहुत सिगरेट पीते थे, वो हमारे घर आते थे तो मेरी बीवी भी कहती थी, मैं भी कहता था मामू सिगरेट मत पिए। तो एक वक्त आया कि उनको हार्ट अटैक हो गया। अब जब वो हमारे घर आते हैं तो मैं उनको तंग करता हूँ, मामू सिगरेट, तो कहते हैं नहीं मैंने सिगरेट नहीं पीना। तो वजह क्या है कि वाई आर वी वेटिंग फॉर अ हार्ट अटैक टू बी एबल टू से नो टू अ सिगरेट? बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आई पर्सनली फील, बिकॉज मैं आवाम की तरफ से सवाल करता रहूंगा, इसलिए करता रहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो सवालात उनके जहन में उभरते हैं उनके जवाबात भी देते जाएं हम, ताकि उनको टोटल अंडरस्टैंडिंग हो कि ये है क्या। तो कुछ लोग ऐसे भी दिल के अमराज में हैं जो सिगरेट नहीं पीते और हार्ट अटैक से मरते हैं। बहुत अच्छा बहाना है। पॉइंट इज देयर। तो मैं चाहता हूं कि ये लोग, ये सवाल उन्होंने जरूर किया होगा टेलीविजन में देखने वालों को कि यार अभी तो मर गया ना, ये सिगरेट पीता नहीं पीता था। सो इस पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं और लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।
Thank you for staying with us. We are back from the break और अब टाइम हुआ है हमारे लिए वाइटल टिप का और मदिया आपके पास एक टिप तैयार है. बिल्कुल टिप बिल्कुल तैयार है, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं वाइटल पियो जिंदगी जियो जियो टिप की जानिब. आज की जियो टिप ये है क्योंकि गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इस शिद्दत को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि जब आप धूप में निकलें तो अपना सर ढांप के निकलें और इसके साथ साथ कोशिश कीजिए कि आप मशरूबात का इजाफा ज़्यादा कर दीजिए. इनटेक आप जो लिक्विड्स का ज़्यादा कर दीजिए. सत्तू का शरबत आप देखते हैं रोड से गुजरते होंगे, ठेलों पे देखते होंगे सत्तू का शरबत, शिकंजबीन का साथ कच्ची लस्सी. कोशिश कीजिए कि इस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा पिएं ताकि आप सन स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक से खुद को बचा सकें. और खाना जो है उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिए. मुझे आज शान ने बताया कि जैसे कुछ दिनों पहले मुझे डिहाइड्रेशन हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करती हूँ, तो इस तरह से मैं एक दिन बीमार भी रही थी, आप लोगों के साथ भी नहीं थी. तो कोशिश कीजिए लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए. मैं तो ये कहूँगा कि आप बड़ी अच्छी बात आपने की कि खाना कम और पानी ज़्यादा, ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज गर्मियों में यू डिहाइड्रेट मोर और उसके हिसाब से आप. तो अब बात हो रही थी आपसे कि क्या डू यू हैव एनी मोटिवेशनल स्पीकिंग फॉर पीपल हु आर स्मोकिंग, जैसे हमारी ऑडियंस में और भी लोग बैठे हैं जो सिगरेट भी पीते हैं और गुटखा भी खाते हैं और तीसरी क्या थी चीज़, शीशा भी पीते हैं. तो लेट्स देखते हैं कि आप कैन यू डू योर मैजिक. और मुश्किलात में डाल रहे हैं मुझे. नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं तो चाह रहा हूँ कि आपको जो अल्लाह ने तोहफा दिया है बात करने का और कन्विंस करने का, मैं चाहता हूँ कि उसको हमारे शो के ऊपर कोई ऐसा एक केस ज़रूर हो आपके पोर्टफोलियो में कि जी मैंने 15 सेकंड के अंदर एक बंदे को सिगरेट छुड़ा दी. सो इट्स नॉट जस्ट आई एम जस्ट सेइंग इट. देखिए जो सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉइंट है वो है तब्दीली. सो आमतौर पे होता है कि जब हम कहते हैं कि आप इस पॉइंट पे हैं और आपको यहाँ से इस पॉइंट की तरफ जाना है, तो फौरी तौर पे हमारे ज़हन में खौफ आना शुरू हो जाता है और हम इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दी बेनिफिट्स ऑफ डूइंग इट वी इंस्टेंटली स्टार्ट फोकसिंग ऑन दी नेगेटिव्स. सो मेरा पॉइंट ये है कि आप स्मोकिंग अगर इस वक्त कर रहे हैं तो उसके नतीजे में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं. मिसाल के तौर पे आपको पीयर्स की अप्रूवल मिलती है, आपको स्ट्रेस लेवल कम है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, तो आप फौरी तौर पे जो चीज़ वहाँ से मिल रही है उसको छोड़ के उस चीज़ को किसी और चीज़ में तलाश करने की कोशिश कीजिए. और मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि इसका बेहतरीन तरीका ये कि आप अपनी ज़ात से तवज्जो हटा के, ये बहुत खुद गर्जी है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं सिगरेट पी लूँ और मेरी स्ट्रेस कम हो जाए. कितना अच्छा हो कि आप यहाँ से निकलें और किसी स्कूल में जाएं और सड़क के ऊपर किसी बंदे की मदद करें और किसी ऐसी जगह पे जाके किसी हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पे कोई ऐसा बीमार बैठा हो जिसको कभी को मिलने नहीं आता, कोई इसको पूछने नहीं आता. उस चीज़ को करके देखिए, उसके अंदर से सुकून तलाश कीजिए. तो ये खुदगर्जी है कि आप अपनी फायदे के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने आप को सुकून देने के लिए एक ऐसी चीज़ पे इन्हिसार करें. बड़ी अच्छी आपने बात की. और अगर चेन स्मोकर हो तो वो सारा दिन हॉस्पिटल में ही रहे और लोगों को देखता रहे. बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आई पर्सनली फील कि ये बहुत अच्छा कनेक्शन आप दे रहे हैं लोगों को कि जिससे हमारी जो हार्मनी है, पीस है, वो भी डेवलप होगी. वी हैव अ कॉलर विद अस, लेट्स सी व्हाट ही और शी हैज टू से. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. शान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र. आप सुनाइए. मंजूर अहमद बात कर रहा हूँ जी, पेशावर से. वैसे तो मैं कच्चा खूह खानेवाल का रहने वाला हूँ, तो अभी पेशावर में ही हूँ. जी. आपका प्रोग्राम जब से ही आपका पहला प्रोग्राम शुरू हुआ था उस दिन से लेके आज तक आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ. माशाल्लाह दिन ब दिन आपका जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा जा रहा है. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे. थैंक यू मंजूर साहब. क्या कहना चाहेंगे आप? जो टॉपिक है इंसदाद मंशियात का जो दिन मना रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि नशा जो है वैसे भी हमारे जो मतलब हमारा मुआशरा इसमें ये चीज़ जो है सख्ती से मना है कि नहीं करना चाहिए. अभी देखें जो लोग सिगरेट पीते हैं तो औकात हमारी क्या है कि वो सिगरेट जो हम पीते हैं उसी को हम अपने पाँव के साथ मसल देते हैं. तो सिगरेट की तो ये औकात है. तो दूसरा मैं अप्रिशिएट करूंगा अपने मीडिया को. शान भाई आपको भी याद होगा तकरीबन आज से 8-9 साल पहले हमारे टेलीविजन पे इसकी बड़ी कवरेज देते थे. मैं बहुत खुश होता हूँ ये देख के कि मीडिया पे आज जो है उसकी पब्लिसिटी नहीं करता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है हमारे जो सिगरेट नोशी से बच जाते हैं. तो मैं हुकूमत से भी यही इस्तदा करूंगा कि हमारे नौजवान तबके के लिए ऐसे पार्क्स हों, अवामी तफरीहात के मौके हों, तो मेरा ख्याल है कि हमारी बड़ी अच्छी आपने बात की है कि ऐसे मौके फराहम करे हुकूमत जिसमें पार्क्स ज़्यादा हों. कोई देखिए ना, अब अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है. तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में सिर्फ कंट्रीज़ डेवलप हो रही होती हैं, हुक्मरान डेवलप्ड होते हैं पहले से. सो आई पर्सनली फील कि उसमें अगर आप देखें तो ज़्यादातर स्मोकिंग जो है ऐसे इलाकों में ज़्यादा है. पाकिस्तान में इतना स्ट्रेस है और अवेयरनेस बहुत कम है और अभी तक हम उस प्रोसेस में आए ही नहीं हैं कि हमारी हुकूमत जो है वॉक करा देने से एक दिन हम
वॉक करेंगे सिगरेट स्मोकिंग के खिलाफ, और जो बाकी 364 दिन हैं उसमें कोई इस बात का जिक्र नहीं करता है। वो सिर्फ आप जब कोई फ्लाइट लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आप अकेले ऐसे हैं, क्योंकि कोई बंदा आपको और यहाँ पे पाकिस्तान में तो मैंने देखा है कि एयरपोर्ट पे जब ये स्मोकिंग का वो लगा था, उसमें ना एग्जॉस्ट था, ना उसके अंदर कोई चीज़ थी, एक शीशे वाला कमरा था और उससे धुआं बाहर भी आ रहा था, लेकिन वो स्मोकिंग एरिया था। अभी भी आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आपसे पूछते हैं आपने नॉन स्मोकिंग में बैठना है या स्मोकिंग में बैठना है, तो यकीन करें बीच में ना कोई दीवार है ना कोई शीशा है, तो इट्स जस्ट वन, हमने एक लॉ पकड़ के उसको वहाँ पर रख दिया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे साथ 2-3 बच्चे हैं जो अभी यूथ है हमारी, और वो सिगरेट की तरफ माइल हैं। आप सिगरेट पीते हैं? शाबाश। मजाक कर रहा हूं। तो क्यों, क्या वजह थी आपने सिगरेट शुरू किया? बस फ्रेंड के साथ जब इकट्ठे होते थे, बैठते थे चिलिंग के लिए, फन के लिए, फैशन के लिए, तो वो लग गए साथ साथ? साथ लग गए। तो अब कितनी डब्बियां पीते हैं रोज की? एक डब्बी पी लेते हैं? हाँ चलें, अच्छा है, चलें, बुरा है। थैंक यू। आप? मैं शीशा जो है दोस्तों के साथ गेट टुगेदर में खास तौर पे, मतलब वहाँ शीशा से- पी लेते हैं आप? जी हैं? तो जी शीशा पी लेते हैं। और आप भाईजान? तो आप भी साथ आए हुए, आप बीच में फंसे हुए हैं। आप गुटखा खाते हैं? नहीं, मैं सिगरेट भी पीता हूँ और गुटखा। आप सिगरेट भी पीते हैं और गुटखा भी खाते हैं? मैंने शाम में मैं कुछ बड़ी किया, हिम्मत है। और 10 साल बाद ये सर्कस में आइटम होगी, नहीं, शीशा नहीं। और कट्ठा पी के दिखाना। मैंने छोड़ दी हूँ मैं। अब छोड़ दिया आप? मैंने आज से 1 साल पहले छोड़ दी मैं। कितना एग्जैक्ट टाइम कितना हुआ है? बिल्कुल एक 1.5 साल हो चुका है, मैंने बिल्कुल सिगरेट नहीं पिया। ये और क्या छोड़ा जो आपको मैंने- याद है साल? मुझे बिल्कुल याद है, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया 1.5 साल से। और मैंने मैं छोड़ आज से दिया, 5 दिन मैं छोड़ पहले- दिया बिल्कुल एक साथ। आप इस तरह कर रहे हैं भाई। आज से 5 दिन पहले मेरे फ्रेंड्स ने मुझे एक सिगरेट पिलाया, जिनकी वजह से मैं उनकी गैदरिंग में दोबारा नहीं बैठा। ये बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने अपने वो दोस्त छोड़ दिए जो इनको, जिन्होंने दोबारा उन्होंने सिगरेट जबरदस्ती पिलाया। पिलाया मुझे, बहुत एक्सटेंड किया कि पियो पियो। बहुत दिनों बाद हम लोग मिले हैं तो मैंने पिया। खैर उसके बाद मैं गैदरिंग में नहीं बैठा। अब कितनी देर हो गई गैदरिंग में ना बैठे हुए? मुझे तकरीबन 1 हफ्ता हो गया मैं उनके साथ नहीं मिला। हफ्ता हो गया आपने गैदरिंग में कुछ नहीं नहीं। किया? आपने कोई तो करते कुछ नहीं आप शीशा पीते थे, अभी भी पीते हैं? अभी भी कभी कभार। तो इस प्रोग्राम के बाद अभी कैसे बात, सबने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि खैर आपके तो बच्चे नहीं हैं अभी, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप माँ बाप जो आपके हैं वो चाहते हैं कि उनका लाल जो है वो शीशा ना पिए, सिर्फ शीशा देखे, तो आप इसके बाद कोई, इस प्रोग्राम के बाद आप सिगरेट यहाँ शीशा छोड़ेंगे? ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था और मैं समझता कि यार सिगरेट नुकसानदेह है, लेकिन शीशा जो है ना वो मतलब एक सिगरेट जो कि है वो नुकसानदेह है, लेकिन शीशा इससे जितना नुकसानदेह नहीं है। और वो जो सा आप गेट टुगेदर्स में और शुगल मेले में पी लेते हैं, तो लेकिन अब वो डॉक्टर साहब की बात सुन के मुझे काफ़ी अंदाज़ा हुआ है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। बड़ी अच्छी बात है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कल भी हमारे साथ थे, और मजे की बात है कि हमारे जितने टॉपिक होते हैं आपके साथ वही हुआ होता है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कैसर अब्बास साहब से कि सर मैंने एक केस स्टडी की थी, उसके अंदर विलेजेस में हमने जाके देखा था कि 53% जो है वो लिटरेसी रेट जो है वो नहीं है उधर। 53% जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। हम उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। क्या हम उन बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नहीं बना सकते? ऐसा आज तक कभी, यानी पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? सिगरेट स्मोकिंग में या सर सिगरेट स्मोकिंग में, उसके बाद उसके अंदर स्टडी में चाइल्ड अच्छा आइडिया हेल्पलाइन जो गाइड किया जाए हेल्पलाइन उन्हें, होनी चाहिए जिसके ऊपर हम इस चीज को डेवलप कर जो सकें। बच्चों आप को माशाल्लाह, गाइड किया जा सके। आप तो बहुत छोटे हैं, आप तो नहीं पीते होंगे? अच्छा, छोटे हैं लेकिन गुटखा खाते हैं। तो आप, क्या उम्र है बेटा आपकी? जी मेरी 17 साल। 17 साल उम्र है आपकी, और आपने गुटखा किस उम्र से शुरू किया? फील्ड रखते ही गुटखा तो नहीं शुरू कर? नहीं, मैंने पिछले साल, एक फ्रेंड था वो, उसने खिलाया उसको था आप थोड़ा कहा सा। कि पिछले साल एक दुश्मन था जिसने गुटखा शुरू कराया। नहीं, वो फ्रेंड अभी भी है। अच्छा, उसने खुद छोड़ दिया। उसने खुद छोड़ दिया, आपको लगवा दिया? नहीं, मैंने भी छोड़ दुश्मन दिया। है वो, आपका दोस्त नहीं है। मैंने 3 दिन खाया था, उसके बाद अजीब सी फीलिंग होने लग गई, तो उसके बाद किसी ने समझाया, पेरेंट्स ने समझाया, उसके बाद नहीं मैंने खाया। अच्छा, उसके बाद नहीं खाते आप? नहीं, बिल्कुल। चलिए बात समझ में आ गई। बड़ी अच्छी बात है। आप बेटा, आप तो मेरे ख्याल में आप तो पानी पीते हैं आप? बड़ी अच्छी बात है। और इन्होंने, हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिगरेट छोड़ दिए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी डब्बियाँ रखी हुई हैं हमारे साथ। इनसे हम साथ साथ पूछते जाएं, बिकॉज ये वो दिल की जो धड़कन होती है वो धक धक करती है। इस तरह ही एक माशरे की जो धड़कन होती है वो म्यूजिक के थ्रू निकलती है, और म्यूजिक के अंदर जो बीट होती है वो होती है हार्ट बीट। तो आप सिगरेट पीते हैं? हाँ जी,
جی مجھے 30 سال ہو گئے سگریٹ پیتے. یہ بال آنے سے پہلے کی بات ہی ہے بال آنے کے جانے کے بعد؟ بالوں سے پہلے کی بات. بالوں سے پہلے کی بات ہے کہ یہ سگریٹ پیتے تھے اور اب آپ ابھی بھی سگریٹ پیتے ہیں؟ یہ ایک میرے دوست ہیں بڑے بڑے انڈسٹری کے بڑے اچھے وہ رائٹر ہیں پرویز کلیم صاحب. اچھا اچھا. انہوں نے مجھے یہ سگریٹ لگایا تھے اور ایک پانی بھی ہم پیتے تھے کوڑا. وہ آپ کو سگریٹ لگائے؟ ہاں جی. انہوں نے آپ کو، تو آپ کو ان کو ایک لگانی چاہیے. آپ بھائی کچھ پیتے ہیں؟ سگریٹ پیتے ہیں آپ؟ جی پیتا ہوں. تو کب کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو سگریٹ پیتے ہیں ساجد بھائی؟ تقریباً 15 سال ہو گئے. 15 سال ہو گئے. شادی کے بعد سگریٹ بڑھے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ بڑے. تو شادی کے بعد آپ کے سگریٹ بڑھ گئے. آپ تو میرے خیال میں دودھ پیتے ہیں ابھی. ہمارے ساتھ جو سیکسوفون پہ ہیں، اور سیکسوفون کا تعلق سانس سے ہوتا ہے، اور تندرست پھیپھڑے جو ہوتے ہیں وہ سیکسوفون، اچھا سیکسوفون بجانے کی نشانی ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں ہم چاہیں گے کہ ہم بتاتے چلیں کہ پھیپھڑوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، جذبے کا تعلق ہے یہاں پہ ہر چیز. کر لیں پہلے کر لیں. چلیں ٹھیک ہے. تو کتنا آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ جی بہت زیادہ پیتا ہوں. کتنے زیادہ پیتے ہیں؟ اب 2 اور 3 پیکٹس. مطلب آپ نے اس لیے سانس بھی وہ پکڑا جس سے یہی رہے بنا رہے منہ سگریٹ کا. تو اچھا، تو اتنے سگریٹ پینے کے بعد آپ سیکسوفون بجاتے ہیں تو یہاں سے دھواں نکلنا چاہیے. وہ بھی امید تو ہے نکل آئے گا، کوشش تو کیا پوری. وجہ تھا کہ صاحب آپ اتنے سگریٹ کیوں پیتے ہیں؟ کوئی سٹریس ہے، کوئی ٹینشن ہے؟ نہیں سر کوئی ایسا نہیں ہے، بس آپ کہہ لیں گے کھوکھا اپنے کیا وجہ ہے؟ کھوکھا تو آئی تھنک اباؤٹ کسی غیروں کا ہے. غیروں کا ہے. سگریٹ میرے پرسنل ہیں. اچھا. نہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں؟ سر میں بلیو کریں، میں دعا بھی کر رہا ہوں روز اور کوشش بھی اچھی کر رہا بات ہے. تقی صاحب دعا کر رہے ہیں روز، اور اگلے جمعرات یہ دیکھیں بھی دیں گے کس طرح یہ سگریٹ چھوڑ دیں. لیکن we'll go to a break and we'll be right back after this break. Don't go away. Things are again smoking up.